Hello everyone, my name is Soum Agarwal and this is my 8th lecture of the subject Material Science in the TCube Gate Classes Initiative. Okay, so in this lecture, I will discuss more about the Miller indices for HCP unit cell. Okay, so let's begin our lecture number 8. So before understanding the Miller indices of hexagonal, let's see this Miller indices of the family of direction and planes. Okay, so we have first talked about Miller indices of just directions and planes. Okay, so now if we consider that if we club the directions which is having similar material properties and which is having similar APF. Okay, so these kind of when we combine these kind of directions which have similar material properties and atomic density and atomic packing factor. Okay, so when we combine these kind of directions, so we can represent with a single Miller indices. Okay, we can represent with a single Miller indices, and such kind of Miller indices is known as like Miller indices of the family of the direction or Miller indices of the family of the planes. Okay, so let's see how we can represent Miller indices of the family of directions. Okay, so it is given by this is your carets. Okay, caret brackets you can say. Inside we have HKL without any commas. So for planes, the family of planes, it can be represented as curl braces. Okay, so HKL inside the curl braces. Okay, without any comma. So here is caret and here is curly braces. Okay, so what do you mean by like having like if we get into more about this cubic system? Okay, so if this is your, let's see, this is your origin O, where this is your coordinate system y, z, and x over here. Okay, so now if we can see this particular direction. Okay, अगर मैं इस directions की बात करता हूँ, we are talking about OA direction. So this is your 100. Okay, with this say square bracket, and then this direction over here, this is what, this is 010. Okay, and then this is your OB, and then we have this OC direction. Okay, this C over here, so this is given as 001. Okay, so these three direction or and their opposite counterparts also. Okay, opposite counterparts, which means if we apply the bar sign or negative sign. Okay, so if you're talking about any cubic cell, whether it is a BCC, FCC, or even simple cubic, so ये जो आपके 100, 010 and 001 है. Okay, तो ये कैसे हैं आपके, these are you can say kind of similar crystallographic directions which have similar APF, which have similar atomic density, and which have similar material property. ठीक है, मतलब material property in the sense of कि अगर आप पर्टिकुलर 100 डायरेक्शन में आप जो स्ट्रेस लगाएंगे तो उस हिसाब से आपको वही सेम आपको यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन मिलेगा जो आप 010 में लगाएंगे या फिर जो आप 001 में आप जो लगाएंगे. ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन यू विल गेट. Okay, when you apply some kind of stress either at 100, either in the 100 direction or 00 direction or 010 kind of direction. Okay, so these kind of similar crystallographic direction of planes, these can be combined into a single Miller indices. Okay, and single Miller indices they can combine. Okay, and they become a family of the direction. So यहाँ पर आपके पास में if I talk about, and any of the Miller indices of any one direction can represent the family, can represent the whole family. Okay, which means if I can write like this 100 caret. Okay, so this means it is a family of directions. It is family of directions. Okay, so which kind of family of direction? This is this 100, and I think it is not visible over there. So okay, this is family of directions. Okay, which kind of directions? So it will have 100, then it will have 010, then it will have 001. Okay, and their counterparts, negative counterparts also. So this is 1 bar 00, and this is going to be 01 bar 0, and this is going to be 001 bar. Okay, so
these 6 directions, they can be clubbed together into one single Miller indices given by this 100 caret. Okay, so either one of these directions can be represented as a whole family. Either it can be written as 100 or it can also be written as 010. Okay, so like चाहे आप 100 से इसको फैमिली को रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे 010 से फैमिली को रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे 001 से फैमिली को रिप्रेजेंट कर लीजिए. ओके, so like any one of the member of the family can represent the whole family. Okay, so this is what we mean. Okay, so अब यहाँ पर क्या है, like you can see that if I talking about 100 and this, so this is what, this is sort of permutation of 100 or the permutation of 010. Okay, so how you are getting this? So these are the permutations, है ना? So these are different permutations. So like you permute zeros and one and you will get this 100 01 0001 है ना. तो क्या है, आप खाली बेसिक परम्यूटेशन करके आपको ये फैमिली ऑफ डायरेक्शंस मिल जाती है. किसके केस में? क्यूबिक के केस में. ओके, सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे अगर हम प्लेन्स के लिए. सो फॉर प्लेन्स, if you talk about like, if you talk about 100 plane, okay, similarly if you talk about 010 plane, and if you talk about 001 plane, okay, so 100 plane is this plane, okay, the front plane, and the 010 is your this right plane. Okay, so this is 100, this is 010. Okay, and 001 plane is your top plane, 001 plane. So you can see whether now these kind of planes, they have like similar material properties, similar atomic packing factor, similar atomic density. Okay, so like overall the crystallographic property is similar for these kind of planes. Okay, so which is, if you're talking about the cubic cell, तो ये कौन से planes है आपके हैं? These are your phase planes. Okay, the phase planes. अब इन प्लेन का जो आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है या क्रिस्टोग्राफिक प्रॉपर्टी है वो डायगोनल प्लेन से अलग होगा. लाइक इफ यू टॉक अबाउट 110 प्लेन है ना, तो ये प्लेन एंड 100 काइंड ऑफ प्लेन, दीज डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर. ओके, सो यहाँ पे 100 110 will not belong to 100 family. ओके, सो यहाँ पे किस प्लेन्स की बात हो रही है? सिर्फ फेस प्लेन की बात हो रही है. तो अब इसी तरीके से इनके जो काउंटर पार्ट्स है, लाइक बैक साइड, ये फ्रंट प्लेन था तो इसका बैक प्लेन बार 100, देन ये लेफ्ट वाला हो जाएगा. ओके, देन ये आपका बॉटम वाला हो जाएगा 001 बार. ओके, so all these 6 planes, these are a part of a family and these can be represented by one single Miller indices. Like you can represent this in this way, in a 100 inside the curl braces. Okay, so ये जो आपका 100 curl inside the curl braces है, this represent the family of the planes. And which kind of planes and how this family has been decided? This has been decided based on that these planes have similar material property, similar APF, similar atomic density. Okay, so like they behave in a same fashion. Like अगर यहाँ पे आप कुछ एक पर्टिकुलर कहीं पे कुछ इलांगेशन होगा किसी एक प्लेन में कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस लगा के, तो वही उसी तरीके से अगर आप वो स्ट्रेस दूसरे प्लेन में लगा तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन मिलेगा. ओके, तो इनको हम क्या करते हैं, क्लब करके एक फैमिली बना देते हैं. यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यू कैन अप्लाई द परम्यूटेशन in this curl braces. Okay, so if you apply the permutation in this one, so you will get all the planes of the family, है ना. अगर इस 100 पे आप परम्यूटेशन लगाएंगे तो आप इस तरह से सारे प्लेन्स आपको मिल जाएंगे. Okay, so we get that in case of a cubic system, the family of planes can be represented with a single Miller indices, and when you do the permutation of that Miller indices, you will get the members of all the family. Okay, this is what I want to say in here. Okay, so now coming for the HCP. Okay, so in HCP, what is the different thing? Let's see. So first of all, the name changes from Miller indices to Miller-Breve indices. Okay, so now in HCP, what is the angle? We have one angle 120 degree and like two angles we have like sort of 90 degrees. So this is what is happening. So we can say like if you take अभी यहाँ पे हमने जो देखा था XYZ, तो यहाँ पे हमारे पास में जो XYZ कोऑर्डिनेट्स था वो ये था आपका Z था. ओके, ये आपका है, ये आपका क्या है, X है. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, तो Z will be this one. Okay, this is Z and this over here is your Y and this over here is X. Okay, so अभी हम यहाँ पे 3 coordinate system ही लेके चल रहे हैं in case of a HCP cell. Okay, so 3 coordinate system is what we are taking again.
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लाइक इफ यू टॉक अबाउट how you represent direction or how you represent plane in a HCP when you are using 3 coordinate system है ना, when you are using 3 coordinate system. Okay, 3 coordinate system. So how you will represent? See, in the similar fashion what we have done in your cubic. Okay, so if I consider like 1 unit of each, okay, this is 1 unit, 1 unit, okay, each edge is of 1 unit. Okay, so what will be the A is your parameter, edge parameter, and this is over here, this is C. So C by A ratio usually given by 1.633. Okay, so now if I want to talk about this is your O point. Okay, if I take this capital A over here at this point, okay, so what will be the direction? ऐसा मिलर इंडिसेस क्या निकल के आएगा इसमें? So it is in the x direction, the intercept is in the x direction. So how you can represent? You can simply represent OA as 100. Okay, OA as 100. And if I want to represent this particular this OB, okay, अगर मैं y direction में इसको लूं तो ये OB को कैसे आप represent करोगे? How you will represent OB? So it will be represented as, okay, it is in the y direction, so it will be 0 1 0. ओके, गॉट इट. एंड नाउ अभी इसी में ये आपको पूरा बेसल प्लेन है. ठीक है, अब यहाँ पर कैसा आपको जो डिफरेंट मेंबर्स है फैमिली के, यहाँ पे डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सारे डायरेक्शंस है ना, ये जो डायरेक्शन है ये भी पार्ट ऑफ अ फैमिली है, ये जो डायरेक्शन है ये भी पार्ट ऑफ अ फैमिली है, ये भी है. ठीक है, ये जो आपके बेसल प्लेन है, बेसल प्लेन पे ये जो आपको 6 डायरेक्शंस निकल के आ रहे हैं, तो ये 6 आपके दे हैव सिमिलर मटेरियल प्रॉपर्टी. ठीक है, अब ये कैसे निकल के आता है ना, ये मतलब हम इसको मान के चलते हैं कि ये जो आपका पूरा हेक्सागन है. ओके, सो इफ दिस हेक्सागन if this is our hexagon and if this is rotated about this axis, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं z एक्सिस की, है ना, इस पॉइंट के अबाउट में आप रोटेट करते हो. ओके, तो आपको ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको हर डायरेक्शन में मिलेगा. तो इसको कैसे रोटेट करते हो? तो लाइक इफ यू रोटेट इट बाय 60 डिग्रीज, ओके, इफ यू रोटेट दिस हेक्सागन शेप बाय 60 डिग्रीज अबाउट दिस z axis, so they will have like you say that OA becomes OB and OB becomes if we say this OC, है ना, तो आप OA OB हो जाएगा. अगर आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये OA OC हो जाएगा, OC आपका OB हो जाएगा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं when you are rotating the hexagon by 60 degree, so you can see that OB OC and these are interchangeable with each other. Okay, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज भी जो आपके यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग डेंसिटी है या एटॉमिक डेंसिटी है या फिर बात करें मटेरियल प्रॉपर्टीज, तो ये सब डायरेक्शंस की आपकी सिमिलर निकल के आएगी. ओके, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया OA, फाइंड कर लिया हमने OB. तो चलिए अभी OC का हमारे पास में क्या मिलर इंडिसेस आता है उसको देखते हैं. तो लेट मी फर्स्ट क्लियर एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज योर पॉइंट O, इसको फिर से बताता हूँ, एंड दिस इज योर Z एक्सिस and this over here, okay, is your y axis and this over here is your x axis. ठीक है, अब जो क्या है आपका जो z axis is perpendicular to the y, z axis is perpendicular to the x, and x and y में आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 120 डिग्री. okay, x and यहाँ पे जो है 120 डिग्री है, इसलिए बताया था ना अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री. तो यहाँ पे अल्फा बीटा किसके बीच में है? z y के बीच में और z और x के बीच में, और गामा क्या है आपका x और y के बीच में है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज बन के आ रहा है. ठीक है, आई होप कि इतना बेसिक्स आपको ये समझ में आया हो. पैरामीटर्स आपके जो भी लैटिस पैरामीटर्स है इस केस में यहाँ पर. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस OA. ओके, दिस इज OA, this if I call this as OB and this is as OC. So okay, so we have OA, this we can write as 100. OB we can write it as 010. okay, what about the OC? तो जो OC है यहाँ पे देख सकते हैं, this is x axis, this over here is x axis, this is y axis, this is over here z axis. तो आप कितना ट्रेवल कर रहे हैं? पहले आप x एक्सिस में 1 यूनिट ट्रेवल कर रहे हो, फिर आप y एक्सिस में आप 1 यूनिट ट्रेवल, आप x एक्सिस में 1 यूनिट ट्रेवल कर रहे हो, y एक्सिस में 1 यूनिट ट्रेवल कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग OC. So how you can represent OC? You can represent 1 1 0.
okay. X intercept 1, y intercept 1, and z intercept is 0, okay. So you can get OC. This is your Miller indices of the OC, that is 110 inside your square brackets, ठीक है। अब इनका जो काउंटर पार्ट्स है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी OA है तो ये आपका OA डैश हो जाएगा, ओके। एंड दिस इज OB, सो दिस इज गोइंग टू बी OB डैश, एंड दिस इज OC, एंड दिस इज गोइंग टू बी OC डैश, ओके। तो यहाँ पे आप OA कैसे मिलेगा, आपको OA डैश कैसे मिलेगा, दिस इज 1 बार 0 0, एंड OB डैश कैसे मिलेगा, दिस विल बी 0 1 बार 0, एंड OC डैश कैसे मिलेगा आपको, दैट इज 1 1 0, ओके। अब ये ओके, यू आर मूविंग, यहाँ पे इधर से आ रहे हैं, एंड OC कैसे जाएगा, OC के लिए हम देख सकते हैं मिलर इंडिसेस, सो यू आर मूविंग इन नेगेटिव y एंड यू आर मूविंग इन द नेगेटिव x, तो माइनस ओवर है, ओके। तो इस तरह से दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, ओके, एंड दिस इज ऑल व्हाट। तो अब इनको मैं, अब ये क्या है, ये पूरी एक फैमिली है ना, दिस इज वन फैमिली, वन होल फैमिली, ओके। सो ये वन होल फैमिली है, सो एंड दिस इनके जो इंडिसेस हैं, ओके, इसका 0 1 0, अब यहाँ पे देख सकते हैं OC, ओके, OC एंड OC डैश में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 1 मिल रहा है और 1 0 मिल रहा है, मतलब इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस होल फैमिली वंस विद वन सिंगल डायरेक्शन 1 0 0, है ना। अब एक सिंगल, किसी भी आप एक मेंबर से पूरी फैमिली को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं मान के चलता, चलो मैं 1 0 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे कि मैंने क्यूब में किया था, क्यूबिक सेल में किया था। अब मैं यहां से ये करता हूं, सो 1 1 0 इज नॉट अ परम्यूटेशन ऑफ 1 0 0, है ना, दिस इज नॉट अ परम्यूटेशन, दिस इज नॉट अ परम्यूटेशन, ओके, दिस इज नॉट अ परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब आप 1 0 0, ये जो पूरी फैमिली है, इसको आप ऐसा परम्यूट, एक मेंबर का आप खाली मिलर इंडिसेस लेके उसको परम्यूट करके आप सारे नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये एक शॉर्टकमिंग्स हो जाती है HCP के केस में। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द प्लेन्स, है ना, जैसे हमने प्लेन्स लिया था, अब हम प्लेन्स में भी एक बार देख लेते हैं, ये y हो गया, ये आपका z हो गया, ओके, एंड ये आपका x हो गया। अब इसी तरह से अगर हम प्लेन्स में बात करें, सो प्लेन्स में अगर ये आपका, ये अगर मैं इस प्लेन को लेता हूँ ना, ये फ्रंट प्लेन इसको लेता हूँ मैं, ओके। तो ये जितने भी आपके पिरामिड प्लेन्स है, ये एक फैमिली ऑफ प्लेन्स बनेंगे, ओके। सो लाइक ऑल पिरामिड प्लेन्स, ओके, पिरामिड प्लेन्स, ओके, वन फैमिली बोल सकते हैं, वन फैमिली। तो जितने भी ये प्लेन है, ये इनको बोलते हैं पिरामिड प्लेन, ये हुए, ठीक है। फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये जो फ्रंट वाला है ये भी है। जैसे ये जो 6 फेस बन के आ रहे हैं, तो इनको आप क्या बोलेंगे, इनको पिरामिड प्लेन्स बोलते हैं। ये क्या है, आपके एक ही फैमिली में आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो जितने भी मटेरियल प्रॉपर्टी और क्रिस्टोग्राफिक प्रॉपर्टी है वो सेम हो जाएगी, ठीक है, सेम होती है, इसलिए हम उनको कंबाइन करके एक मिलाते हैं। अभी ये आपके पास में जो फ्रंट प्लेन है, अब इसका ये क्या बनेगा, इस 3 एक्सिस के हिसाब से आपके क्या मिलर इंडिसेस आएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे x इंटरसेप्ट आ रहा है, एंड दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू z एक्सिस, ओके। सो इसको अगर मैं प्लेन A बोलता हूँ, सो प्लेन A, ओके, प्लेन A इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू z एक्सिस। तो इसका क्या मिलर इंडिसेस, इसका आएगा 1 0 0, गॉट इट। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर नेक्स्ट साइड वाला जो इसका प्लेन है, उसको हम बोल लेते हैं, चलिए प्लेन बी बोल लेते हैं इसको, ओके। ये जो है साइड वाला, ओके, ये हो गया हमारे लिए प्लेन बी हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको रीच करने के लिए कैसा हो रहा है, दिस प्लेन बी, ओके। तो दिस प्लेन बी, यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट क्या बन के आ रहा है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट आ रहा है 1 यूनिट का, और x ये देख सकते हैं, ये जो आपका ये एज है, दिस एज इज पैरेलल टू द x, ओके, एंड दिस एज ओवर हियर, दिस इज पैरेलल टू द z। सो यहाँ से हमें क्या निकल के आया, लेट मी क्लियर, ओके। सो प्लेन बी is पैरेलल टू x एक्सिस एंड z एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे प्लेन बी का मिलर इंडिसेस क्या निकल के आया, निकल के आएगा 0 1 0 निकल के आएगा प्लेन बी का मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दो इंडिसेस निकल के आ गए। अब मैं इसका एक साइड वाला और ले लेता हूँ, इसके साइड में भी जो है वो भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं अगर ये साइड वाला लूँ, इस साइड वाले को, ओके, तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, इसको चलो बोल देता हूँ, प्लेन सी बोल देता हूँ, सी प्लेन हो गया, ओके। ये जो है, ये जो पूरा बन के आ रहा है ना, ये जो प्लेन है, लेट मी मार्क इट, ओके, ये जो प्लेन बन के आ रहा है, ओके, ये जो प्लेन सी।
अब प्लेन सी में यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ जस्ट, ओके। तो ये जो प्लेन, इस प्लेन की बात करूँ मैं, ये ले इस प्लेन की, ओके। ये जो प्लेन है, तो दिस इज अ प्लेन सी एंड दिस ओवर हियर इज जेड, दिस ओवर हियर इज वाई एंड दिस ओवर हियर इज एक्स। अब प्लेन सी का इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, वाई में पॉजिटिव बन के आ रहा है, यहाँ पे एक्स भी है, एक्स कहाँ पे आपका नेगेटिव डायरेक्शन में -1 में जा रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जा रहा है वाई में। तो ये आपका प्लेन सी कैसे बन के आ रहा है, और जेड में क्या है, इसका पैरेलल है, ओके। सो प्लेन सी पैरेलल टू जेड एक्सिस, ओके। और इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या निकल के आ रहा है, -1 निकल के आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट आपका 1 निकल के आ रहा है। तो इसका जो मिलर इंडिसेस आएगा वो कैसे आएगा, 110, ओके। तो प्लेन सी का बार 110 आ गया। ये किसका है, सी का है। बी का क्या था, बी का था 010। ए का क्या था, आपका 100 था, ठीक है। इस तरह से अब इनके जो उल्टे वाले हैं, अब यहाँ पे मैं अगर इसके काउंटर पार्ट देख लूं, जैसे तो प्लेन ए का पीछे वाला, ठीक है, प्लेन बी के जस्ट पीछे वाला, प्लेन सी के जस्ट पीछे वाला, इनके जो नेगेटिव काउंटर पार्ट्स हैं, तो उनके क्या निकल के आएंगे, तो उनके कैसे निकल के आएंगे, उनको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, ओके। सो अगर ए का है तो उसका अपोजिट बोल दूंगा मैं, उसको ए डैश बोल दूंगा, तो उसका कैसे जाएगा, 1 बार 0 0 आ जाएगा। और बी का है बी डैश वाले को, तो इसको बोलूंगा 0 1 बार 0, ओके। एंड ऐसे सी वाला हो जाएगा तो सी डैश 1 बार 0, इस तरह से आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं, सी का ये है तो सी डैश कौन सा होगा, सी डैश विल बी, ओके, दिस इज ए, दिस इज ए डैश, दिस इज ए over here, this is B and this is B dash over here, and ये C है तो ये आपका C dash होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है, आप Y में नेगेटिव जा रहे हैं, ओके, Y में ऐसा नेगेटिव जा रहे हो, और यहाँ पे X में ऐसा पॉजिटिव आ रहे हो, तो Y का नेगेटिव है तो -1 है, X का पॉजिटिव तो 1 है। इस तरह से आप देख सकते हैं मिरर इंडिसेस निकाला गया है। फिर अगेन यहाँ पे आप एक, ये पूरी की पूरी एक फैमिली है, ये सारे जो पिरामिड प्लेन्स है ये पूरी एक फैमिली है। इसको आप किसी भी एक मिलर इंडिसेस से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किसी भी, लाइक मैं इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट द होल फैमिली विद मिलर इंडिसेस ऑफ जस्ट प्लेन ए, सिर्फ प्लेन ए से मैं होल फैमिली को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, ओके, कर्ल ब्रेसेस 100, ओके। सो दिस रिप्रेजेंट दिस होल फैमिली। बट ना इश्यू इज दिस, अगर आप इसको परम्यूटेशन करेंगे, इसका परम्यूट करेंगे, so you won't get C and C dash. So like if you consider like 3 axis system for Miller for HCP, तो अगर आप किसी एक मेंबर से आप पूरी फैमिली को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसको कर तो सकते हो, बट उसको ऐसा परम्यूटेशन करके आप बाकी के मिलर इंडिसेस आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी अर्ली टाइम्स में मेटलर्जिस्ट थे तो उनको वो चीज समझ में नहीं आए कि वाई वी कैनॉट रिप्रेजेंट permutation, so they were like, okay, we need to get the permutation and somehow, so that इनका कुछ अच्छा सा digits निकल के आएगा and some sort of similarity भी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि just in order to get permutation of one family, permutation of one member will give the indices of all the members, ठीक है। तो उनको ये चीज करनी थी, तो उनको परम्यूट करके सारे के सारे उनको मिलर इंडिसेस चाहिए थे हर फैमिली, हर मेंबर के, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फोर्थ एक्सिस इन द बेसल प्लेन, ओके। तो बेसल प्लेन ये जो है आपका, दिस इज योर बेसल प्लेन, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक फोर्थ एक्सिस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका, इफ दिस इज योर दिस ओवर हियर, ओके, एक एक ये ले लिया है, एक इसका ये ले लिया, और यहाँ पे एक फोर्थ प्लेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये दिस इज x1 इसको बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे, तो ये इस तरह से ये x3 बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये इसका ऐसा 3 एक्सिस की जगह में अभी आपका आ गया, सॉरी, ये आप इस तरह से आपका आ गया 4 एक्सिस सिस्टम आ गया, है ना। ये 3 एक्सिस आपको बेसल प्लेन पे मिलेगा, और ये चौथा एक्सिस जो आपका z है वो तो है ही, है ना, उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है, okay, z axis, okay, z हो गया, and this is going to be x1 x2 x3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया फोर्थ एक्सिस को, जैसे HKL में यहाँ पे i एक्स्ट्रा आ गया, ओके। अभी i एक्स्ट्रा आ गया, तभी i के लिए कैसा काम करना है वो देखेंगे। तो प्लेन्स के लिए अलग काम होगा थोड़ा सा, और आपके लिए डायरेक्शंस के लिए थोड़ा सा अलग काम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मेन जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन क्या मिली कि जो हम फोर्थ एक्सिस को इंट्रोड्यूस करते हैं एचसीपी में, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये जो फैमिली ऑफ प्लेन्स है या फैमिली ऑफ डायरेक्शंस है, उनको किसी एक मेंबर से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका हम परम्यूटेशन कर पाए, ठीक है, परम्यूट करके हम उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना लें, ठीक है। तो यही हमारा मेन मोटो है फोर्थ एक्सिस को इंट्रोड्यूस करने का।
So if you talk about like for planes, so how we'll find for the planes? Okay, so for planes, we have, again let me draw. So this is x2, this is x1, and this is x3, and these all, this is at like 120 degree, 120 degrees, okay, 120 degrees. तो अभी प्लेन्स की बात करता हूं, तो अगर मैं यही लेता हूं, वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ओके। तो अब मैं अगर ये x2, x3, x1 है ना, अगर मैं अब यहाँ पे प्लेन ए वापस बात करता हूँ, ठीक है, प्लेन ए मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है, फ्रंट प्लेन, जो हमने 3 एक्सिस सिस्टम में 100 बोला था। अब इसको 4 एक्सिस सिस्टम में इसका मिलर इंडिसेस क्या निकल के आएगा वो देखते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लेन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये जो प्लेन का इंटरसेप्ट बन रहा है, एक तो x1 में बन रहा है ना, और यहाँ पे ये जो x3 है ये भी इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। x3 आपका नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कर रहा है। अब ये जो एज है ये आपका पैरेलल है किसके? x2 के, और ये वाले एज है ये पैरेलल आपके z एक्सिस के। तो अगर मैं इसको प्लेन ए बोलता हूं, so let me write about plane A. So plane A is parallel to x2 axis, okay, and it is parallel to z axis, okay. तो इसका अब x1 इंटरसेप्ट क्या बन के आएगा? x1 इंटरसेप्ट इसका 1 आ गया है, और इसका जो x3 इंटरसेप्ट है वो क्या है? -1 आ गया है, ठीक है, 1 -1। तो अब इसका मिलर इंडिसेस आप कैसे लिखेंगे? प्लेन ए का मिलर इंडिसेस अगर लिखना है तो इसका रिवर्सल करते हैं, वही 1 का 1 रिवर्सल करेंगे, 1 रह जाएगा। अब ये पैरेलल है तो इसका इंटरसेप्ट x2 में कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। z में कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? अभी x1 लिख लिया है, x2 क्या है? पैरेलल है, उसको रिवर्स करेंगे, 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका? दिस ओवर हियर इज -1, तो यहाँ -1 लिख लेंगे। फिर अगेन ये आपका z0 तो इस तरह से 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया? ये आपके पास में इस तरह से प्लेन्स के आ गए मिलर इंडिसेस इन 4 एक्सिस सिस्टम विच इज 1 0 1 बार 0, ओके। और अब इसी तरीके से हमें निकालना है, अगर हमारे लिए ये वाला प्लेन बी ले लेते हैं, वापस सभी तीनों के प्लेन्स के लिए देखते हैं, काम करेंगे। प्लेन बी के लिए फाइंड करना है, तो प्लेन बी किस एक्सिस में आपका है उसको लेट मी जस्ट राइट, ओके। प्लेन ए को यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, काम आएगा, ओके। अभी आपके पास में प्लेन ए आ गया, ओके, लेट मी जस्ट क्लियर लिटिल बिट, ओके। तो ये प्लेन ए है, एंड ये हमारे पास में कुछ एक्सिस हैं, ये x2, x3, x1, ओके। तो प्लेन बी जो है, प्लेन बी अब आपका यहाँ पे x3 पे एक आपका इंटरसेप्ट दे रहा है, और एक आपका x2 पे इंटरसेप्ट दे रहा है, ठीक है। तो और ये जो है ये जो प्लेन है, दिस प्लेन, ये जो इसकी ये जो एज है, दिस इज पैरेलल टू x1 है ना, x1 का पैरेलल है, तो प्लेन बी इस फर्स्ट आपको क्या निकल गया कि इट इज पैरेलल टू x1 एक्सिस, और इस तरह से ये इसके जो एजेस आए हैं ये इसके z एक्सिस से पैरेलल है, तो ये इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो x1 इंटरसेप्ट क्या निकल के आएगा? इन्फिनिटी, और z का इंटरसेप्ट क्या निकल के आ गया? इन्फिनिटी निकल के आ गया। तो प्लेन बी का आपके पास मिलर इंडिसेस क्या निकल के आया? प्लेन बी का, ओके। तो प्लेन बी का मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगा? अभी यहाँ पर x1 इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, ओके। एंड x2 यहाँ पे आपके पॉजिटिव में है, +1 में है, x2 आपका 1 ही रहेगा, एंड x3 है ना, x3 से, तो x3 भी आपका नेगेटिव में है, तो यहाँ पे -1, ओके, यहाँ पे है ना नेगेटिव, क्योंकि x3 पॉजिटिव आपका किस डायरेक्शन में? इधर पीछे की साइड में, तो इधर आगे की साइड में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ओके। एंड z इज इन्फिनिटी, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से 0 1 1 बार 0 आ गया, ओके। अब यहाँ पे हमें काम करना है, किसके लिए हमें काम करना है? यहाँ पे सी के लिए, है ना, प्लेन सी के लिए। प्लेन सी जो हमारा ये वाला है, ओके, ये वाला जो प्लेन सी है, ओके। अब ये जो प्लेन सी है इसका हमारे पास में क्या मिलर इंडिसेस आता है? लेट्स सी, ओके। तो ये आपका है दिस, लेट मी जस्ट थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ओके। ये हमारे पास में प्लेन सी है। ये जो प्लेन सी है, एक तो ये z एक्सिस में पैरेलल है, ओके, ये दिख रहा है प्लेन सी z एक्सिस में पैरेलल है। दूसरा ये जो एज है, ये एज इट इज बिलोंगिंग टू x3 है ना, तो ये x3 को पैरेलल कर रहा है, ये जो एज है ना, ये दिख रहा है आपको, दिस इज पैरेलल टू x3। तो यहाँ से x3 की आपकी क्या हो जाएगी? इंटरसेप्ट x3 इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, z इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, ओके। सो बात हो रही है प्लेन सी की, ओके। तो
अब यहाँ पे प्लेन सी की बात हो रही है। सो अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर प्लेन सी। अब यहाँ पे x2 में यहाँ पे ये आपको मिल रहा है पॉजिटिव, ओके, यहाँ पे +1 है, और x1 में कैसा है आपको नेगेटिव, ऐसा पीछे की ओर चलना है। तो पीछे की ओर चलना है x1 में, तो ये -1 आ जाएगा यहाँ रिवर्स करके, sorry, so -1 and then x2 +1 and x3 is infinity 0 and z is infinity 0, okay। तो इस तरह से ये आपको प्लेन सी का निकल जाएगा 1 बार 1 0 0। अब इसी तरीके से इनके अपोजिट के निकालेंगे। सो अभी अपोजिट वाले मैं इधर थोड़ा सा यहाँ पे एक साथ में, ओके। सो okay, so let me write सो a डैश एंड b डैश एंड c डैश ना। तो a डैश को कैसे लिखेंगे, a डैश प्लेन को लिख लेंगे ऐसे आपका 1 बार 0 1 0, ओके। b डैश हो जाएगा आपका 0 1 बार 1 0 एंड c डैश आपका हो जाएगा कैसा 1 1 बार 0 0, ओके। तो इस तरह से ही आपको 6 प्लेन्स के 6 मिलर इंडिसेस निकल के आ गए, किसमें, इन 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी एक प्लेन को पकड़ लो, है ना, जैसे हमने प्लेन ए को अगर हम यहाँ से ले लेते हैं और इससे हम सारे के सारे पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर देंगे। सो यू कैन राइट दिस एज 1 0 1 बार 0, है ना। अब ये हो गया आपका, ओके। ये कर्ल है ना, फैमिली है तो कर्ल लिया है, कर्ल ब्रेसेस, ओके। ओके, प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका फैमिली ऑफ ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स। कौन सा, पिरामिडल प्लेन्स, है ना, ये पिरामिडल प्लेन्स की बात हो रही है। अब इसमें क्या है, अब ये फर्स्ट 3 को आप परम्यूट कर दीजिए, आपको ये सारे मिल जाएंगे, और 0 जो है आपका ये वाला, ये z वाला जो ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इस 3 से आप परम्यूट कर देंगे, है ना, तो आपको ये सारे 6 के 6 आपको डिफरेंट मिलर इंडिसेस मिल जाएंगे। तो बस ये परम्यूटेशन की वजह से ना हम पूरा का पूरा एक नया एक्सेस हम लाए हैं, ओके। चलिए बात करेंगे अभी डायरेक्शंस के लिए। तो डायरेक्शंस के थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल हो जाता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक 2-3 फॉर्मूले हैं, ओके। वो फॉर्मूला आप देख लीजिए कैसे ये इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्रेजेंट, ओके, एच के एल इंटू एच के आई एल, ओके। इसको एक मिनट, पीछे एक पॉइंट छूट गया है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की, ओके। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की, तो ये आप देख सकते हैं, ओके। इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, ओके। आई वुड बी रिक्वायरिंग बिट स्पेस ओवर हियर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कन्वर्टिंग एच के एल इंटू एच के आई एल, है ना। यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका जो रहेगा आई, इसको कैपिटल ले लेते हैं, एच के आई एल, इस तरह से ले लेते हैं ना। थोड़ा सा ये एच और ये एच अलग है, ये के और के अलग है, एल और एल ऐसा अलग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आई आपका आता है ना, ये जो आई आता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच प्लस के, ओके। ये जो आई है दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच प्लस के। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन ए में, तो 1 + 0 इज 1 और होल माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे आपका आई का आगे -1 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 0 + 1 1, माइनस साइन लगाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए 1 प्लस -1 तो 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। यहाँ पे अगेन -1 + 1 0, ओके। सो जो आई पोजीशन है दैट इज गिवन बाय माइनस ऑफ एच प्लस के, तो ये आपको याद रखना है, ओके। सिमिलरली फॉर डायरेक्शंस, यहाँ पर भी अब आपको इस तरह से डिफरेंट फॉर्मूलेस आते हैं, ओके। सो अभी हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है किसको, यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं, एच के आई एल में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या फॉर्मूला है देखते हैं। सो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है कि जो कैपिटल एच है उसको कैसे लिखेंगे, वी राइट इट बाय 1/3 2h माइनस के, एंड इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना आप लोग, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड के इज रिटन एज 1/3 2k minus h, I is given as minus h plus k, ओके। h plus कैप, ये कैपिटल ही रहेगा, ओके। एंड l जो है वो आपका l ही रहेगा। सो दिस इज हाउ यू गेट एच के आई एल कैपिटल वाला। ये आपको ये किस में है, इन
तो ये आपको क्या करना है, आपको मिलर इंडिसेस लाना है 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कहां से, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से लाना है आपको, ठीक है। यू हैव टू कन्वर्ट 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फॉर दैट वी हैव दिस फॉर्मूला एंड दिस इज फॉर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस ओनली, यहां प्लेन से मत लगा देना, okay. So I hope you have written this formula, okay. So now we'll see, let me clear। तो हमारे पास में अभी ये जो सॉरी दिस दिस इज ओरिजिन z, ओके। तो ये इस तरह से निकल के आया था x2 x1 x3, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सिस है हमारे पास में, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये z एक्सिस है। अब आपके पास में जो ओरिजिनल 100 था उसको देखते हैं, OA की बात करते हैं। तो यहाँ पे OA की बात करेंगे, फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में ये क्या निकल के आएगा, फिर हमारे पास में देखते हैं ये क्या निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट HKL, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स इनटू HKIL, यू हैव टू कन्वर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये क्या था आपका 100 था, सो 100 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं 100। सो 100 हाउ यू विल कन्वर्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल H की। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 2h माइनस k। तो यहाँ पे h स्मॉल h क्या है, 1 है, k 0 है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी 2/3, कैपिटल H आपका 2/3 आ गया, ठीक है। देन कैपिटल K की बात करेंगे, सो अगेन ये आपका 1/3, ठीक है, 2k माइनस h। सो यहाँ पे k 0, h इज माइनस, यहाँ पे h 1 है तो -1 हो जाएगा, ये कैसे आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा k आपका, ठीक है, कैपिटल K। एंड आपका जो I है, ओके, I is given as what, h plus k, so h plus k, so this is 2/3 minus 1/3 और होल माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसा आ जाएगा आपके पास में, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी h is 2/3, ओके। ये आपका होल यहाँ पे ऐसा माइनस साइन आएगा, okay. So this is going 2/3 minus 1/3 is 1/3 and whole minus लगेगा तो 1/3 minus आ जाएगा। And L is L only, so capital L यहाँ पे आपका 0 ही आएगा। अब इसको देखेंगे, समेटते हैं इसको। So HKIL यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, तो ये आ रहा है आपको H is 2/3 and K is आपका आ रहा है -1/3 एंड I भी आपका आ रहा है -1/3 और ये 0, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा 2 1 बार 1 बार 0, ओके। इस तरह से 2 1 बार 1 बार 0, ये आपका आंसर आ गया। किसका है ये, अभी जो OA था ना, ये OA का है आपका। अब इसी निकाल सकते हैं यहाँ पे OB का, और इसी तरह से निकाल सकते हैं OC का, ठीक है। सो OB का कैसे निकालेंगे, तो लेट्स सी। सो फॉर OB x3 x2 x1, ओके। तो यहाँ से अगर हमें OB का निकालना हो, इसका कितना था, 0 1 0 था, ये आपका HKL हो गया। अब इसमें आपको कैपिटल H कैपिटल K कैपिटल I कैपिटल L में कन्वर्ट करना है, इस तरह से निकल के आ जाएगा आपका, ओके। तो वही फॉर्मूला है आपको जो बताया है, लाइक कैपिटल H इक्वल्स टू 1/3 2h माइनस k, ठीक है। यहाँ पे h है तो स्टार्टिंग में 2h आएगा, k है तो 1/3 2k माइनस h, यहाँ k है तो यहाँ स्टार्टिंग में 2k आ जाएगा, ओके। ये कैपिटल है सब। हमेशा गलती यहाँ पे जाता है आई में क्या करते हैं ना आप, कई बार ये स्मॉल वाला ले लेते हैं, जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ले लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेना, सो माइनस h प्लस के कैपिटल में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला h के लेना है, ठीक है। गलती कर जाती है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला h के हम लोग ले लेते हैं कई बार, तो इसमें हो जाता है गड़बड़, ठीक है। एंड L फिक्स है यहाँ पे आपका, L जो L है वो आपका L ही रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिलर इंडिसेस ऑफ HCP यूनिट सेल। आई होप कि ये भी आपको चीजें समझ में आया हो। तो अभी मैं इसमें इससे ज्यादा कवर नहीं करूंगा HCP के केसेस में। तो नेक्स्ट इज द स्लिप सिस्टम, ओके। सो
इसको अगर आप लोग समझ में नहीं आया हो तो एक बार प्रॉपरली पीछे जाके स्टार्ट से वापस एक बार पूरा लेक्चर देखिए, रिकॉल करिए. स्टिल इफ सम क्वेश्चन परसिस्ट देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी. ओके ओके, तो फिर स्लिप सिस्टम को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी आज के लिए बस इतना ही करते हैं. ओके तो फिर भी आपको कुछ अभी डाउट्स है मिलर इंडिसेस में, क्यूबिक सेल में, ब्रेवे लैटिस, सॉरी, इन द एचसीपी. ओके सो यू कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है, चलिए फिर अभी आज के लिए इतना ही करते हैं. मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.